Morning student. Today we are learning our chapter 1 from the subject social science and this is for class 7th English medium. And the name of chapter 1 is the medieval world. Let's begin with the exercise. Multiple choice question. Question number 1. The study of history through the remains of human life is known as archaeology. इतिहास को हम पढ़ते हैं, जो भी अवशेष मिलते हैं, जो भी मानव अवशेष हमें मिलते हैं, उसके थ्रू जो हम इतिहास की पढ़ाई करते हैं उसे क्या कहते हैं? आर्कियोलॉजी कहते हैं. सेकंड, द लॉन्ग पोएम्स इन प्रेज ऑफ किंग आर कॉल्ड प्रशस्ति. राजाओं की तारीफ में जो लंबी लंबी पोएम लिखी गई है इतिहास में उसे कहा जाता है प्रशस्ति. द बुक दैट वर रिटन बाय हैंड लॉन्ग अगो आर कॉल्ड. ऐसी किताबें जिन्हें हाथों से लिखा जाता था उन्हें कहा गया था मैन्युस्क्रिप्ट. The historical monuments and building provide an idea of the style of blank and development of culture of the period. जो भी historical monuments है उससे देख के क्या क्या पता चलता है? आर्किटेक्चर का पता चलता है, कल्चर का पता चलता है. नेक्स्ट इज द्रव्य परीक्षा. अ फेमस बुक ऑन कॉइन्स वॉज रिटन ड्यूरिंग द रेन ऑफ. एक किताब थी जिसका नाम था द्रव्य परीक्षा. किसके शासनकाल में लिखी गई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी. Sixth is a chronicle means a record of the rule of the blank and life of the court. Chronicle means होता है कि एक रिकॉर्ड होना किसके रूल का? राजा के रूल का और किस हिसाब से कोर्ट की लाइफ थी उसका. Now next is fill in the blanks. The word medieval is derived from a Latin word which means time in the middle. Medieval का क्या मतलब होता है? बीच का वक्त. Second, the late medieval period lasted from the 13th to the 18th century. जो आखिरी का medieval period था कब से कब तक चला? 13th से 18th century तक के चला. Third is the ancient Greek referred to the Indian as Indoi or people of the Indians. जो ancient Greek लोग थे उन्होंने Indians को क्या कहा? इंडोई कहा. Floral and geometric motifs were used to decorate the book and the monuments of the period. क्या क्या इस्तेमाल होते थे? फ्लोरल यानी पौधों, सूखे पौधे एंड geometric motifs. The sculptures are mostly figures of king, queens, gods and goddess. ज़्यादातर इन्हीं लोगों की मूर्तियाँ बनाई जाती थी. Next is most of the chronic during the medieval period were written in Persian, Arabic and Turkish. क्रॉनिकल किसके बारे में ज़्यादातर लिखे गए थे? किसके द्वारा लिखे गए थे? अरेबियन के थ्रू और तुर्किश के थ्रू. द काइंड ऑफ डेकोरेटिव मैन्युस्क्रिप्ट इज कॉल्ड कैलीग्राफी. सजी धजी जो मैन्युस्क्रिप्ट थी उसे क्या कहा गया? कैलीग्राफी कहा गया. नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. फ्रॉम वेयर डज द मिडिवल पीरियड स्ट्रेच इन इंडिया. कब से कब तक आया मिडिवल पीरियड? So the answer is the period that lies between the ancient and the modern period of history is known as middle or medieval period. Ancient और modern history के बीच का वक्त medieval period कहलाता है. In India, the medieval period is stretched from the beginning of 18th century to the 8th century to the 18th century. 8 से 18वीं शताब्दी तक के. That is for nearly 1100 years. 1100 साल के लिए लगभग. Second question is, what was the Indian subcontinent called during the era of the Purans? Indian subcontinent को पुराणों के वक्त पे क्या कहा जाता था? So the answer for it is, during the year of the Puranas, the subcontinent was called भारत वर्षम. क्या कहा जाता था इंडिया को उस टाइम पे? भारत वर्षम कहा जाता था पुराणों के काल में. And this term was used to distinguish it from अदर कॉन्टिनेंट्स और इससे उसे हम दूसरों के कॉन्टिनेंट से अलग करते थे. थर्ड क्वेश्चन इज, नेम द टू क्रॉनिकल्स रिटन बाय आमिर खुसरो विथ हुज रेन डू दिस डील विद. आमिर खुसरो द्वारा लिखे गए 2 क्रॉनिकल्स बताइए और किसके शासनकाल में लिखा ये भी बताइए. सो द आंसर फॉर इट इज खज़ैनुल फुतूह एंड तुगलकनामा by Amir Khusro deal with the reign of Khiljis and the Tughlaqs. Fourth question, how do the sculptures and the painting of medieval period help us to know about the history? जो भी हमें स्कल्पचर्स मिली, जो भी मूर्तियाँ मिली और जो भी पेंटिंग मिली, कैसे हम अंदाज़ा लगाएंगे उससे medieval history का? So the answer is there are many beautiful paintings and sculptures that belong to the medieval period. The sculptures are mostly figure of king, queen, god and goddess.
एंड वर मेड ऑफ ब्रोंज, स्टोन और वुड। ज़्यादातर राजा रानी देवी देवताओं के बने हुए थे, कांसे के, तांबे के, पत्थर के या लकड़ी के होते थे। द मोस्ट फेमस स्कल्पचर्स वर द चोला ब्रोंज। चोला का जो कांसे से बना हुआ था वो सबसे ज़्यादा फेमस था। फॉर एग्जाम्पल द डांसिंग शिवा, एक डांसिंग शिवा की भी मूर्ति मिलती है। सिंस रूलर्स ऑफ किंगडम एंड अदर इंपॉर्टेंट पीपल ऑफन हैड देयर पोर्ट्रेट्स डन। ज़्यादातर ये जो राजा रानी होते थे अपने पोर्ट्रेट बनवाते थे। द पेंटिंग सर्व्स एज अ रिकॉर्ड ऑफ द लाइन्स ऑफ द डिसेंट ऑफ द किंग्स एंड नोबल्स। पेंटिंग्स से हमें पता चलता है कि उस टाइम पे कौन कौन से उनके राज दरबारी हुआ करते थे राजा के, और कौन कौन उनके नोबल्स हुआ करते थे। दे ऑल्सो टेल अस अबाउट द नेचर ऑफ द सोसाइटी। पेंटिंग्स के थ्रू भी हम सोसाइटी का नेचर समझ सकते हैं कि किस प्रकार का नेचर हुआ करता था। द वे ऑफ ड्रेसिंग एंड कस्टम्स फॉलोड इम्पॉर्टेंट इवेंट्स द लाइफ ऑफ द कॉमन पीपल अलॉन्ग विद अदर फीचर्स ऑफ दैट पीपल। कल्चर का भी पता चलता है कपड़े और रहन सहन देख के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द चेंजेस इन द नेम ऑफ इंडियन मेनलैंड विद टाइम इन डिटेल। कैसे इंडिया का नाम बदला, वक्त के साथ साथ बताइए। सो द आंसर फॉर इट इज, एज वी स्टडी the historian of our land, we will notice that India was known by different names during different period of history. अलग अलग वक्त पे इंडिया का अलग अलग नाम रखा गया। The early Sanskrit text during the Vedic period called the texts of the land between the Vindhyas and the Himalayas आर्यव्रत और land of the Aryans। संस्कृत के टाइम पे या वेदों के टाइम पे हमने इंडिया को नाम दिया the land of Aryans। ड्यूरिंग द ईयर ऑफ पुराणों के वक्त में सब कॉन्टिनेंट को नाम दिया गया भारतवर्षम, एंड दिस टर्म वॉज यूज टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम द अदर कॉन्टिनेंट्स। द वर्ड हिंदू में बी ट्रेस टू द पर्शियन लैंग्वेज। हिंदू शब्द कहाँ से आया? शायद पर्शियन लैंग्वेज से आया है। एंड इज यूज टू रेफर्ड टू अ पर्सन हु लिव्स बियॉन्ड द रिवर इंडस विच इज ऑल्सो नोन एज सिंधु इन संस्कृत। या फिर उन व्यक्तियों के लिए यूज़ किया गया जो सिंधु नदी के उस पार रहते थे। द टर्म हिंद एंड हिंदुस्तान वर इन यूज इन पर्शियन एंड अरेबिक फ्रॉम द इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट ऑफ द 11th सेंचुरी। ये जो शब्द थे हिंद और हिंदुस्तान पर्शिया में यूज़ होते थे या फिर अराबिक लोग यूज़ करते थे 11वीं सेंचुरी में। देयर आफ्टर रूलर्स ऑफ दिल्ली सल्तनत एंड द मुगल्स बिगिन टू कॉल्स देयर इंडियन एम्पायर बाय द नेम ऑफ हिंदुस्तान। इसलिए जो दिल्ली सल्तनत जब हमारे देश में आई और जब मुगल्स आए तो उन्होंने भारत का नाम क्या रख दिया? इंडिया का क्या नाम रख दिया? उन्होंने हिंदुस्तान नाम रख दिया। इंडिया प्रेजेंट्स नेम इज़ ऑल्सो डिराइव्ड फ्रॉम द रिवर इंडस। इंडिया का जो अभी हमने नाम दिया है इंडिया, वो भी नदी इंडस के नाम पर ही दिया है। द एंशियंट ग्रीक्स रेफर टू द इंडियंस एज इंदोई और पीपल ऑफ द इंडस। और जो पुराने ग्रीक लोग थे उन्होंने इंडिया के लोगों को क्या कहा था? इंदोई कहा था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर इंस्क्रिप्शंस? वाई हैव दे बीन डिस्क्राइब्ड एज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट इंडियाज पास्ट? इंस्क्रिप्शन क्या होता है और वो इम्पॉर्टेंट कैसे है? सो द आंसर फॉर इट इज, inscriptions are writing engraved on hard surface like metal, rock and stone। पत्थर, धातु या फिर चट्टानों पे जो खोदी गई चीज़ें होती है, जो लिखा हुआ रहता है, उसे हम इंस्क्रिप्शन कहते हैं। द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड एपिग्राफी। इंस्क्रिप्शंस की स्टडी को हम एपिग्राफी कहते हैं, उसे पढ़ने की स्टडी को। इंस्क्रिप्शंस आर एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट इंडियाज पास्ट। इस इंस्क्रिप्शन से हमें हमारे इंडिया के पास्ट की जानकारी मिलती है। लास्ट ईयर यू रेड अबाउट द पिलर एंड रॉक इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका द मौर्यन किंग। 6th क्लास में आप सभी ने अशोका के इंस्क्रिप्शंस के बारे में पढ़ा होगा। अशोका कौन थे? मौर्यन किंग थे। इंस्क्रिप्शंस में बी शॉर्ट सच एज अ 2 line डेडिकेशन ऑफ अ टेम्पल इज तेवचू और लेंदी। या तो 2 लाइन में लिखे जा सकते हैं, काफ़ी बड़े भी हो सकते हैं। such as long as poem praising the achievements of king, these long poems in praise of kings are called प्रशस्ति। या फिर पूरी की पूरी कविता लिखी जा सकती है। राजाओं की तारीफ में लिखी जाने वाली कविता को क्या कहा जाता था? प्रशस्ति कहा जाता था। For the medieval period, we have plenty of material from Chola inscriptions
टू द इंस्क्रिप्शन ऑन द वॉल्स द ताजमहल। हमारे पास कब से कब तक के इंस्क्रिप्शन है? चोला से लेकर के ताजमहल तक के इंस्क्रिप्शन से लिखे हुए। द रेड फोर्ट एंड द वॉल्स ऑफ द राजपूत पैलेसेस, और रेड फोर्ट पे भी कई सारे इंस्क्रिप्शंस लिखे हैं, साथ ही साथ राजपूत पैलेसेस पे लिखे हुए हैं।